Yes. Yes, the screen visible to you. Yes, sir. So you can see here Westland. Have you read this poem, The Westland? Yes, sir. Have you read or just read the summary? कुछ Sir, पढ़ा read है? it completely word by word. Word by word. Very good. Excellent. If you have read this poem, so I think you should not face any problem. ये lines आपके सामने. Yes, sir. Tell me about these lines. Sir, there T.S. Eliot is saying that the people who were before us are now dead, and now we are also, with the passage of time, slowly going towards the death. Means इसका ये बताया Means ना the people. hidden meaning क्या है इसकी? सर मीन्स यहाँ पे सर वो ये कह रहे हैं कि डेथ जो है वो लाइक वो परमानेंट है और सबको मरना है, हमसे पहले वाले भी मर चुके हैं और हमें भी मरना है. ये तो इसकी apparent meaning है, hidden meaning बताएं. Hidden. जो टेक्स्ट है उसकी हिडन मीनिंग बताएं. He who was living is now dead. We who were living are now dying with a little patience. मीन्स सर ही इज अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मरना नहीं चाहता. मरने से कौन, देखिए मरना तो कोई भी नहीं चाहता. We all want to live as long as possible, and death is a truth. It is a naked truth. No one can deny from this truth. Actually, he's talking about also the death of his uh, time, morally, character, the death from character point of view, from moral point of view, and from many other points of view. So he, in this particular poem, he is very much regretting, he is very much feelings disappointed with the things which were going on in that particular time. He's talking about the decay of modern world, how modern world is dying. Dying means losing their moral values, losing their character and other things. अगर आपने द वेस्ट एंड को पढ़ी होगी तो you must have read many other things which is talking about of modern world. Yes, sir. Remember, this poem was written after, published after First World War, and then Second World War also took place, and that was more, it was bloodier than the First World War. It was more dangerous and destructive, and you will find terrible than the First World War. ये तो सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का उसने मंजर एक पेश किया. ओके,
Let's move to the next. Then you will find another writer who was writing in that particular time and who was writing in 1940s or 50s, 1940s, and that is George Orwell, and he wrote a novel that is called 19, that is, the name of the novel is Animal Farm in 1984. These are very famous novels which deals with politics, and it is also called, it is a political satire. Slide change करते हैं. So you can see the slogans are very clear: war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. How do you interpret, how do you analyze these slogans? These are the slogans. हमारे यहाँ भी slogans होते हैं बहुत सारे. कोई एक स्लोगन जो आपको याद है हमारे यहाँ जो होता है, आजकल एक स्लोगन चल रहा है बहुत किसी एक पार्टी की तरफ से कि वोट को इज्जत दो. ठीक है, हालांकि उससे आवाम को क्या मिलेगा पता नहीं. इस तरह से माजी में भी स्लोगन चले. करंट जो गवर्नमेंट है इसका भी स्लोगन था, क्या था, तब्दीली. और भी स्लोगन थे, 1 करोड़ नौकरियां, रोटी कपड़ा और मकान. रोटी कपड़ा मकान, वेरी फेमस स्लोगन. Then 50 lakh houses and 1 crore jobs. So these are also slogans. नया War is- पाकिस्तान. Yeah, new Pakistan. War is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. These are also the slogans. So what सर do you हमारे think? एयरफोर्स का स्लोगन है सहरास्त की दरियास्ते हो बाला हो परमास्ते. फारसी. Yes, this is their slogan, right? So slogans, are very attractive and they attract people. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. What do you think about these slogans? सर यहाँ पे कह रहे हैं कि जंग होगी तो पीस आएगी और फ्रीडम एक सर माइंड में होता है और फ्रीडम कुछ नहीं होता, वो एक स्लेवरी ही होती है. और अगर जब इग्नोरेंस आती है तो वो सर यहाँ पे इग्नोरेंस को स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो होती है वो इग्नोरेंस में होती है. Okay. Do you know about the background knowledge of this novel? कोई knowledge है आपके पास, background knowledge? देखिए, जब No, तक sir, background हमें knowledge नहीं. नहीं होगी, it will be difficult to understand the text. Text can be understood easily, or anything that you want to read, that is text. You can understand when you have background knowledge. हम लोग एक अखबार जो है वो पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हैं ना, अंग्रेजी अखबार भी आप पढ़ ही लेंगी, क्या ख्याल है? समझ में आता है ना अंग्रेजी अखबार भी? ये नहीं आता. सर आता खास तौर पे वो खबरें जिनमें आपके मतलब की चीजें हो. मिसाल के तौर पे, इफ आई एम अ स्पोर्ट्समैन, आई लाइक क्रिकेट, so I will be able to understand cricket commentary easily and I can understand whatever written about cricket. अगर मैं मुझे फुटबॉल के हवाले से कोई चीज मिलती है या टेनिस के हवाले से, तो मुझे वो हो सकता समझ में ना आए क्योंकि उसकी वोकैबुलरी और उसका ये चीजें मेरी नॉलेज में नहीं होगी. तो दैट इज व्हाई आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, और बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा उसका मेरे पास. समझ आ रही है? तो टेक्स्ट कैन बी अंडरस्टूड व्हेन यू नो वी हैव द वोकैबुलरी, रेलेवेंट वोकैबुलरी प्लस बैकग्राउंड नॉलेज. तो उसमें क्या होता है, आसानी हो जाती है. Now, war is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Remember, these are the lines from the novel, which is about totalitarian attitude, which is about the worst form of dictatorship. जो उस वक्त से दूसरे जंग अजीम के दौरान या उस वक्त जो था जर्मनी में हिटलर का रोल था, उस हवाले से इसमें काफ़ी आपको चीज़ें मिलेंगी. हिटलर जो था एक किस्म का डिक्टेटर था, ज़बरदस्त किस्म का डिक्टेटर था, और भी डिक्टेटरशिप के असरात आपको मिलेंगे. So here in this novel, it is shown that if we do not control this dictatorship today, then the time is not far when we will be controlled by this dictatorship. आज हमारे पास वक्त है कि हम इस पर कंट्रोल कर ले, वरना तो हम इसके कंट्रोल में आ जाएंगे और ये बहुत बुरी चीज़ है. ठीक है, जिसको उसने नाम दिया है टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जहाँ पे कोई भी शख्स, कोई भी आपकी आज़ादी नहीं है, हत्ता कि आप अपनी मर्जी से सांस से मरा दिए कि आप सोच भी नहीं सकते. आपकी सोच में भी टेक्नोलॉजी के जरिए पाबंदी लगाई गई है. आज भी आप कुछ ममालिक का देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स मींस देयर मीडिया इज नॉट फ्री, they are not free at all, and if they say anything against the state, if they say anything against their policy, so they are terribly beaten, they are terribly punished, और उनको सजाएं मौत तक दी जाती है, और वो भी तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे मौत दी जाती है ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें. यानी कि रियासत के खिलाफ क्यों कह दिया आपने, या रियासत की किसी पॉलिसी के खिलाफ आपने कुछ. अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप रियासत के
के खिलाफ कुछ ही बोलें, आप रियासत की पॉलिसी के खिलाफ कुछ ही बोलें, ठीक है। वहां पर बोल के आपने आगे बहुत से ऐसे बोल के दंदनाते फिरते, लेकिन एक ऑटो डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। वहां पे फिर वो जो फर्द वाहिद जो होता है वो अपने चक्कर में किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये उनका स्लोगन है, वॉर इज पीस, उनके बकौल। और ये उस वक्त आज भी ऐसे चल रहे हैं ना, कि वॉर जो है, लाइक चंद ममालिक को वॉर में एंगेज कर दिया, तो वो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं उनके लिए मजे, वो इत्मीनान से अपना काम चला रहे हैं। They are selling, their weapons and they are doing this thing. So that time it was also there कि उन्होंने आपस में उनकी एक थी कि हम जंग जारी रखेंगे, आवाम जो उलझी हुई रहेगी। तो ये वॉर पीस किसके लिए थी? उन जमातों के लिए थी, पावर्स के लिए। There were 2 or 3 powers that time. So for them war was peace. आवाम उलझी रहेगी वॉर में and they will be in peace. Freedom is slavery. अब ये क्या कह रहे हैं कि if we give them freedom, give people freedom, अगर हम 85% जो लोग जिनको हम कंट्रोल करें, अगर हम उनको आज़ादी देते हैं तो वो खुद उनके गुलाम बन जाएंगे, इसीलिए उनको गुलामी में रखो। आर यू गेटिंग मी? नो Yes, रिस्पॉन्स। sir. तो ये स्लोगन उसको बता रहा है कि इफ वी गिव देम फ्रीडम वी विल बिकम देयर स्लेव। यानी फ्रीडम से मरा दे कि अगर आप उनको आज़ादी दें हर चीज़ की, तालीम की आज़ादी और दीगर आज़ादी, और तो क्या होगा कि हम उनके गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए फ्रीडम इज स्लेवरी। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। हम अगर जब तक इनको जाहिल रखेंगे, तालीम से दूर रखेंगे, तो हम स्ट्रांग रहेंगे। और जब इन्होंने तालीम हासिल करना शुरू कर दी, तो ये इग्नोरेंस नहीं रहेंगे, फिर ये हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के जो लोग हैं या इस तरह की जो पावर्स है, उनका ये मानना है कि इफ वी कीप आवर पीपल इग्नोरेंट मीन्स जाहिल, देन वी विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। हम लोग क्या रहेंगे? हमारी स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी। और अगर हम ये पढ़ लिख गए तो हमारी ताकत जो है खत्म हो जाएगी। तो ये स्लोगन है, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अब आप देखिए ये Yes, तीनों sir. जो स्लोगन से कितना डिफाइन कर रहे हैं, और दे आर वेरी मच रिलेटेड टू आवर कंट्री। आज भी हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में देखें, कुछ लोग ऐसे तबके जिनको, या कुछ जगहों पे आप देखिएगा लोगों को जानबूझकर तालीम से दूर रखा। हमारे मुल्क का हाल देख लो, तालीम के मामले में हम कितने पीछे। हमारे यहाँ वैकेंसियाँ खाली पड़ी रहती है, कोई उसको फिल नहीं करते सालों साल से। और अगर कभी फिल करने का हो तो उसमें ठीक ठाक पैसा कमाया जाता है, मनाया जाता है। और बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल का एक लिस्ट है। फिर स्टूडेंट्स को जहन बना दिया गया मार्क्स की दौड़ में, बस स्टूडेंट नंबर लेने की दौड़ में लगा हुआ है, काबिलियत आए ना आए, ठीक है। वही मैं कहता हूँ कि असेंबली की एक सीट खाली होती है, तो वो 15 दिन के अंदर उसके अंदर उस पर इलेक्शन करा के उसको फिल करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे एक टीचर जिसका पता है 2 साल पहले ही पता चल जाता है कि ही इज गोइंग टू रिटायर ऑन दिस डे, वो रिटायर हो जाता है। उसके बाद वो सीट सालों साल खाली रहती है। बस उस पर गुजारा काम चलवाते रहते हैं, कभी विजिटिंग को तो कभी कॉन्ट्रैक्ट को। फिल करो ना उसको आप, वो नहीं करेंगे। सो एक्चुअली ऑल दिस शो वन थिंग दैट आवर सिस्टम इज वेरी वीक। तभी ये है कि हम प्रॉस्पर, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, एंड प्रोग्रेस जो है, एंड दिस इज समथिंग ये हमारे दुश्मनों की चाल भी हो सकती है। दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि हम तालीम पर खर्च करें। वो हम ये बोलेगा महंगाई करें, वो ये बोलेगा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, वो ये बोलेगा कि इसमें टैक्स बढ़ा दें। कभी उन्होंने बोला कि यार तालीम का बजट बढ़ाओ? IMF ने कभी बोला तालीम का बजट भी बढ़ाओ? स्कूल की नहीं, तादाद sir. बढ़ाओ, कॉलेज की तादाद बढ़ाओ, यूनिवर्सिटीज के टीचर्स के वजीफे में सैलरीज में इजाफा करो, कभी नहीं बोलेंगे। उनको पता है ये चीज़ें अगर होना शुरू हो गई तो ये तो हमारे जो है इनको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तालीम में आगे निकल जाएंगे ये। वो ये कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये बोलेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, डीजल की कीमत बढ़ाओ, चीनी की कीमत बढ़ाओ, आवाम पे तरह तरह के टैक्स लगाओ, ताकि आवाम पिसती रहे, और फिर उसके बाद आवाम तालीम से मजीद दूर होती रहे और अपने रोजगार के चक्कर में मजीद परेशान होती रहे। दिस इज व्हाट दे वांट। सो दीज 3 आवर। इसके बाद है who controls the past controls the future, who controls the present controls the past. How do you define them? Hurry up, टाइम बहुत कम है। सर जैसे ये पता होता है कि उसे करना क्या है एट दैट टाइम, वो अपने पास्ट को भी कंट्रोल कर सकता है और अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकता है। So ये again this is again related to थॉट सर। डिक्टेटरशिप से इसका ताल्लुक है। who controls the past controls the future. तो जिसके पास ताकत है पास्ट को कंट्रोल करने की, तो वो फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकता है। who controls the present controls the past. और जो कंट्रोल को प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकता है, he can also control the past.
Normally what happens, the dictators make changes according to their own situation. They actually want to continue their rule, that's why they want to make any kind of changes. तो कभी पास को प्रेजेंट यानी कि वो चाहते ही नहीं कि इनके लोगों को हिस्ट्री याद रहे. They want to they continue to make changes. सर यहाँ पे वो लोग पास हिस्ट्री को कंट्रोल अपने करने से हिसाब क्या से मुराद है? change पास को कंट्रोल करने से मुराद ये है कि बस वो ग्लोरियस पास्ट होता है ना, लोगों के तारीख से इंसान बहुत मोटिवेट होता है, तो वो उसको चेंज करके अपना वहाँ पे कुछ ऐड कर देंगे, जिससे लोगों के दिनों में हमारी मोहब्बत और हमारी अतात बैठी रहे. जैसे अर्तुगरुल सीरीज का कह सकते हैं, जैसे वो अब अपने पास्ट को अब शो कर रहे अर्तुगरुल, हैं. हाँ, अब अर्तुगरुल को आप देखें ना, अर्तुगरुल जो है उनके सामने झुकता नहीं है, तो वो उनकी, और दूसरा उसके अगेंस्ट जो कैरेक्टर है बेबुलाक का, वो झुक जाता है. ठीक है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, इसीलिए वो मुसलमानों को कत्लेआम करता है. उसको ये नहीं पता एक मुसलमान को या एक इंसान को नाहक कत्ल करना तमाम इंसानियत के कत्ल के बराबर है. उससे इस चीज़ का नहीं अंदाजा होगा तो उसको सिर्फ ईमान के मामले में तो बड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन यार जब तुम मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, वो दुरुस्त है क्या? और क्यों कर रहा है? सिर्फ अपने मकसद के लिए, कि सरदार आला बनने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए, और फिर दिल में डर बैठा मंगोलों का. ठीक है. ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड द कैरेक्टर ऑफ अर्तुगरुल, ही सेज दैट मरना तो आज भी, कल भी और आज भी, तो हम क्यों ना शेर की तरह मरे. और वो अपने तमाम जितने भी उसमें कामयाबी हासिल करता है बिकॉज ऑफ हिज फेथ. सो दिस इज समथिंग एंड लर्न्स फ्रॉम द हिस्ट्री. वो क्यों कहता है, इससे पूछता है कि हु आर यू, तो क्यों कहता है द सन ऑफ, जो उसके अपने वालिद साहब का नाम, दिस शोज हिस्ट्री, क्योंकि उसके वालिद साहब भी जो थे बहादुर इंसान थे, इसीलिए उनका नाम मेंशन करते हैं, फख्र महसूस करता है. इसी तरह से आगे उस्मान जो होता है वो भी मेंशन करता है, करेगा अपने वालिद का नाम. सो दिस शोज पास्ट, ग्लोरियस पास्ट. फिर ये मजीद इसमें कि in the end the party would announce 2 and 2 made 5 and you would have to believe it. It was inevitable that they should make that claim sooner or later. The logic of their position demanded it, not merely the validity of experience. ये भी एक पैसेज है जो मैंने वहाँ से उठाया है उस नॉवेल से. कहते हैं कि आखिर में पार्टी जो कहेगी कि 2 और 2 5 होते हैं और आपको उस पर यकीन करना होगा. यानी ये पार्टी जैसा कहेगी आपको, आज भी आप देख लें, कुछ जैसे पार्टी कहती है वैसे उनको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, लॉजिक को भी खातिर में लाते हैं, and they start saying you know whatever comes to their mind because they're defending their party or they're defending their leader. ऐसे ही ना आज भी. Yes sir. तो ये this also shows dictatorship. डिक्टेटर में क्या होता है कि एक ही बंदा जो वो चल रहा होता है, चलता हुआ आ रहा होता है, उसी का बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका, ये क्या उस पार्टी में और क्या काबिल लोग मौजूद नहीं है? बड़े बड़े काबिल लोग होते हैं. तो अगर आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उन काबिल लोगों को सामने लेकर आए ना. व्हाई डोंट यू ब्रिंग दैट यू नो कॉम्पिटेंट पीपल इन द फ्रंट? मसला ये है कि बस वो एक नाम को लेके चल रहे हैं, उस नाम से ही चाह रहे हैं, अपना कुछ हो तो बात बने ना, नाम से चाह रहे हैं कि उठे. इस तरह से आपको दुनिया भर में मिलेंगे अक्सर जगहों पर. एंड इट वाज हैपनिंग दैट टाइम. सो दैट टाइम एक्चुअली as I told you they focus Hitler. फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि when the memory failed and written records were falsified, when that happened, the claim of the party to have improved the condition of human life had got to be accepted because there did not exist and never again could exist any standard against which it could be tested. तो जब बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स होती हैं so they aggravate the problem, मजीद उसमें इजाफा कर देते हैं. तो जो पुरानी प्रॉब्लम होती है वो इंसान भूल ही जाता है, नई प्रॉब्लम सामने आती है. ऐसे ही ना, चीनी आज 110 रुपए किलो होगी, हम खुश हो गए. ये तो सोचे 70 रुपए किलो थी भाई ये, अब हम 110 पे राजी हो गए क्योंकि हमने 150 वाला दौर भी देख लिया. अब 110 पे हम खुश हैं कि नहीं, या 100 रुपए में खुश हैं हम. तो उन्होंने, ये भी एक किस्म की चाल होती है, एक किस्म का अंदाज होता है कि किस तरह से आवाम को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इसका भी. वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं. तो बहुत सारी टेक्स्ट का तो हमारे पास बहुत सारा है, बट एज आई टोल्ड यू दैट वी आर नॉट गोइंग, वी कैन नॉट go for each and everything, but I'm just showing you how to do it. अभी मैंने कुछ उठाया from Shakespeare plays Hamlet ड्रामे से. Do you know about Hamlet? Yes sir. कौन था? बार्बर? Sir डॉक्टर? Shakespeare. Was Hamlet or barber, doctor, labor, mason, mechanic? कौन था ये? टीचर? Never था sir. क्या था? लेबर था.
लेबर, Warrior. कोरियर, Sir, he was a lover. लवर, लवर, Thank you. he was a princess, Princess, sir. he was a prince. कौन था ये बताएं Okay, जल्दी से, prince. बादशाह का बेटा था ना हेमलेट। Yes, sir. हमने नहीं पढ़ी, sir. नहीं पढ़ी तो असल बात बताए ना, नहीं पढ़ी। सबने कहा पढ़िए तो मैंने इसीलिए सोचा कि पूछूं सर कौन है। हमने सुना है, बस हेमलेट है तो आप, मैं आपको चंद चीजें फेमस। बता रहा हूँ कि आप लोग वो कर लीजिएगा। जब आप मार्केट में अप्लाई करने से पहले उन चीजों को लाजमी कर लीजिएगा। उन चीजों में ये ओके है कि सर। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब मार्केट में, जब आप अपने क्या कहते हैं उसे एरिना में उतरेंगे ना, जैसे हम कहते हैं एक रेसलर जब रिंग में जाता है ना, तो ये उसका क्या होता है, उसकी मार्केट होती है, यानी जितनी सर उसने आप प्रैक्टिस हमें की। एक लास्ट क्लास में पेपर्स के बाद जरूर बताइएगा कि हम क्या क्या चीजें लाइक हमें लेकिन वो पेपर प्रोफेशनल से लाइफ पहले में ही जाना बताऊंगा है, मैं, तो पेपर सर से वो पहले सब हमें बताऊंगा, ठीक बताइए। है। तो आपको कुछ चीजें बता दूंगा और कुछ राइटर्स का बता दूंगा, यू मस्ट स्टडी देम, ठीक है। अब आप जब स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह यू एवरीथिंग विल एंटर योर माइंड, क्योंकि अब आपके पास प्रेशर नहीं होगा जो आप लोग अननेसेसरी ले लेते हैं। बगैर प्रेशर का आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो ऐसे लगेगा जैसे आप नॉवेल पढ़ रहे हैं या कोई सस्पेंस स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई अपनी मर्जी का आर्टिकल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर से, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। उसको पढ़ने का फायदा ये होगा कि आपसे कोई सवाल पूछेगा ना, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने वो जो पोलो कोलियो को पढ़ा था तो उसमें क्या था। वो आपसे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हर एक को नहीं पता पोलो कोलियो कौन था। पोलो कोलियो या पता नहीं क्या था, वो याद है जो हमने पढ़ा था, पॉल को यस सर, अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट। तो हर एक को उनका नहीं पता, लोगों को शेक्सपियर का पता है, लोगों को रोमांटिक पोएट्री का पता हो सकता है, टीएस एलियट का पता हो सकता है, ठीक है, दी जॉन मिल्टन का मालूम हो सकता है। बाकी लोगों को इतना थोड़ी पता होता है, आम लोगों को या आम जगहों को पर लोगों को। पता चला किसी ने कहा हुआ शेक्सपियर वाज ही अ नॉवेलिस्ट, तो आपने कहा यस सर, ओए हो, उसने कहा ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। पता चला आपने शेक्सपियर जो ड्रामेटिस्ट था उसको नॉवेलिस्ट बना दिया। इस तरह की चीजों को थोड़ा सा देखिए। एनी हाउ हेमलेट, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks. That flesh is here too. It's a communication consummation. Devoted to be wished, to die to sleep perchance to dream. Aye, this is the rub. Hamlet. Think for a while. क्या आपको समझ आ रहा है? टाइम थोड़ा ले लें, एक आध मिनट ले लें। सफरिंग्स के बारे में सर बात हो रही है कि सर जो फॉर्च्यून में हमारे सफरिंग्स होती हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, वेदर ही शुड डाई और ही शुड स्लीप। ओके, और कोई चीज जो आपको समझ आ रही है? गुड। Sir, it look like a motivational speech. मोटिवेशनल जैसे जो मोटिवेशनल तो नजर नहीं आ रहा मुझे, तो वो लग रहा है जैसे कोई डिसमोटिवेट और वो नहीं कर पा रहा। थिंकिंग अबाउट इट, टू बी और नॉट टू बी, इट इज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। फिर इसमें भी एनाफोरा यूज हुआ हुआ है। कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। सर एनाफोरा इज यूज्ड इन दिस। ओके, एंड
सर ऐसे लग रहा है जैसे हालात की नजाकत से राइटर मरना चाह रहा है. You can see the very opening line, to be or not to be. This is that is the question. ये एक बहुत famous line है Hamlet of Shakespeare, in which Shakespeare is showing that Hamlet is confused. He is confused. क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा है मेरे. Remember, Hamlet is a scholar and highly learned person, and he does not take action quickly. ये इसका जो है क्या बनता है यहाँ पर? This is the part of his error, and that is why he has a fall. He takes action very late, and when he takes action, so his mother is killed, his beloved is killed, and he is himself, then he is also killed.